শুনেছি। আমি বললাম না গুরু, আগে করতাম না, এখনো করি। না না, আপনার নাম কি বলবেন? মানে খুব লোকে প্রবলেম ছিল। তারপরে থ্যাঙ্কস টু সোশ্যাল মিডিয়া আমি আবার জীবিত হয়ে গেলাম। আপনারা কেউ আমার রিল দেখেছেন খাবার খাবার? হ্যাঁ, না না, আপনার নাম কি বলবেন? আমাকে খুব লোকে প্রবলেম ছিল, খুব হেসে ঠাট্টা করে আমাকে বলেছে থ্যাঙ্কস টু সোশ্যাল মিডিয়া ডেডলি ছিলেন, আমি আবার জীবিত হয়ে গেলাম। আপনারা কেউ আমার রিল দেখেছেন খাবার খাবার? আর আমি ওই ঠাট্টাতে আমি না না, আপনার নাম কি বলবেন? আমাকে খুব লোকে প্রবলেম ছিল, খুব হেসে ঠাট্টা করে আমাকে বলেছে থ্যাঙ্কস টু সোশ্যাল মিডিয়া ডেডলি ছিলেন, আমি আবার জীবিত হয়ে গেলাম। এবার আপনাকে একটা খুব মজার কথা বলি। আমার বয়সে, আমি 59 বয়সী, কত 59। তো আমার বয়সী অনেক লোকেরা সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করে না। একটা কুইক আওয়াজ দেন আপনারা সবাই যারা সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করেন, বলুন ইয়ে। তো আমি ওটা ইউজ করি। আরে দারুণ জিনিস হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া গুরু, দারুণ। সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে আমার চোখ খুলে গেছে। একটা মজার কথা বলি, আজকাল আমার ঘেন্না হয়ে গেছে বন্ধুদের দিয়ে। খুব বাজে পাই আমি বন্ধুদের। জানো কেন? বন্ধুদের তুমি একটা কল মিস করো, একদম খুন চুষবে। খুব বড় হয়ে গেছিস তুই, হ্যাঁ, ভুলে গেছিস আমাকে, ভুলে যাস না, ছোটবেলা থেকে আমরা সাথে ছিলাম। আমি ওদের বলি আমি তোমাকে ভুলতে চাই, বুঝতে পারছো? তোমাদের কাছে আমার এত পুরনো এত গোপনীয় ব্যাপার আছে না, ওটার সাথে তোমাকেও পুততে চাই। তবে মজার কথা, বন্ধুরা যখন দেখবে ভাও দেবে না, ফলোয়ার্সরা যখন দেখবে দেখেই বলে স্যার ওয়াও। তারপরে বন্ধুরা বলে তুই জানিস না আমরা তোর আসল বন্ধু। আমি বলছি ভাই, আমি সুপ্রিম কোর্টের জাজ না, আমার কিছু আসল চাই না, আমার অন্ধ ভক্তি আর প্যার চাই। দেখুন, আমার ওয়াও চাই, আমার ভাও চাই, আর আমার রাইট নাও চাই। ভুল চাই কি? আপনারা সবাই চান কি না ভালোবাসা? চান কি লোকেরা ভালোভাবে একসাথে থাকে? ইয়েস ও ইয়েস। এবার আপনার খুব মজার কথা বলছি। আমার যে ছেলে আছে না, ওর নাম হচ্ছে আর্থ। আমি ওকে ভালোবেসে ডাকি মোগলি, মগু। ও বিদেশে থাকে, আর এভরি অল্টারনেট ডে আমি ওকে ফোন করি, বুঝতে পারছো? এভরি অল্টারনেট ডে। আর এক দিন ছেড়ে আমি ওকে কল করি, আর 15 দিনে একবারও আমার কলটা নিয়ে নেয়, বুঝতে পারছো? তোমার ছড়ারা এমন হচ্ছে, বাবারা ফোন করে তোমরা ফোন নাও না, আর যখন ফোন করে না 15 দিনে একবার আমাকে বলবে হ্যাঁ বাবা। আমরা হ্যাঁ বাবা, আইল কল ইউ ব্যাক। আবে মানে বে এখন তো কথা শুরু হয়েছে। না বাবা, অনেক কথা হয়ে গেছে। আমি বললাম ভাই, আমার বন্ধুরা নিজের বাচ্চাদের সাথে ঘন্টার পরে ঘন্টা কথা বলে। বলে বাবা জিজ্ঞেস করো কি কথা বলে। আমরা কি কথা বলে? বলছে বাবা আমার আপনার বয়সে মা বাবারা, ভাই ভাই লাইভ যেও না, নেই, না না কেটে দেয় ভাই দয়া করে। হ্যাঁ আচ্ছা দাদা, আপনারা কেউ একটু লাইভ টাইভ আর রেকর্ড করবেন না, এটা আপনাদের জন্য খেলছি, তো একটু এনজয় করুন প্লিজ। হ্যাঁ হিন্দিতে, আরে ফ্যান্টাস্টিক। ও what I'll now set to Hindi so that you know it is common to all. So I will tell you about my son. हर ऑल्टरनेट डे मैं उसको कॉल करता हूं, और 15 दिन में एक बार मेरा कॉल रिसीव करता है, और कॉल रिसीव करते ही कहता है बाबा आई विल कॉल यू बैक। मैंने कहा अबे अभी तो बात शुरू हुई है। कहता नहीं बाबा घंटों से बात कर रहे हैं। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा मेरे दोस्त अपने बच्चों से 2-2 घंटे बात करते हैं। कहता है बाबा पता करो क्या बात करते हैं। मैंने कहा क्या बात करते हैं? कहता है बाबा इस उम्र में लोग अपने हेल्थ की बात करते हैं, वेल्थ की बात करते हैं, बाकी उल्टी सीधी चीजों के बारे में बात करते हैं, आप मुझे चुटकुले सुनाते हो। मैंने कहा अबे मैं तेरे को चुटकुले नहीं सुनाऊंगा, तेरे साथ जोक नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा? कहता बाबा मेरे साथ नहीं करोगे। मैंने कहा तो फिर किसके साथ करूंगा? कहता है बाबा अगर आपको चुटकुला सुनाना है। मैंने कहा हाँ मुझे हंसी आता है, माई चुटकुला सुनाता है। कहता बाबा वेरी सिंपल, बिकम अ स्टैंड अप कॉमेडियन। मैंने कहा स्टैंड अप कॉमेडियन होने से क्या होगा? कहता है बाबा आपको पता है लोग स्टैंड अप कॉमेडियन क्यों बनते हैं? मैंने कहा क्यों बनते हैं? कहता है क्योंकि घर में उनका कोई जोक नहीं सुनता है। मैंने कहा अच्छा। कहता है बाबा बता रहा हूं, स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाओ,
लोग आपका टिकट देकर आएंगे शो देखने। मेरा भी मन हुआ कि मैं उसको बोल दूं, मोगो, एक टाइम था कि अक्खा मुंबई पे विट्ठल कानिया का राज था, और ये खड़गपुर का ऑडियंस अपन का वाइट टाइम वापस लाएगा। लाएगा कि नहीं? कभी किसी ने प्यार किया? मैंने भी किया। सुपर। क्या क्या मौका मिला? अरे ये देखो, ये प्यार का मौका ढूंढ रहे हैं भाई। आज तो खड़गपुर में एक लड़के का तो प्यार होगा ही होगा। फैंटास्टिक, ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड। अच्छा, जल्दी से बता दो, यहां पर कोई है जो दिल्ली का है? कोई दिल्ली का है तो बोलो ये। कोई दिल्ली का नहीं है। अच्छा, जो दिल्ली का भी है ना, वो भी छुप गया है। उसने कहा ये क्या कुछ बताएगा। मैं बताता हूं, मैं ना दिल्ली का हूं, लेकिन मुझे दिल्ली वालों से प्रॉब्लम है। पता है क्या? अच्छा, किसी को बताना नहीं, है सीक्रेट बात बता रहा हूं। क्या है कि दिल्ली में लोग उस नाम से बुलाते हैं जिस नाम से वो बुलाना चाहते हैं। मेरे भाई, तू क्या कर रहा है? तू वीडियो कर रहा है क्या? मत करना मेरे भाई, रिलैक्स हो ना मेरे भाई, आराम से। मैडम मत करिए, एक्सक्यूज मी, रिलैक्स करो, एंजॉय करो प्लीज, आराम से। थैंक यू सो मच, एंजॉय इट यार, ठीक है। तो दिल्ली वालों का खासियत क्या होता है? मेरा माँ बाप ने बड़ा प्यारा नाम रखा। क्या नाम रखा? आशीष। क्या नाम रखा? लेकिन दिल्ली में चलते चलते कुछ भी नाम से बुलाते हैं। अच्छा, आप बुरा मत मानना, दिल्ली में ऐसा होता है, इसलिए हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो। दिल्ली में मैं सड़क पे चलते जा रहा हूं, मेरे को पता है किस नाम से बुलाते हैं? ओए कालू। देख बेटा, ये भाई सबसे ज्यादा जो हंसा है उसका रंग मेरे जैसा ही है। हमको भी ऐसे बुलाते हैं। बड़ा प्रॉब्लम है दिल्ली में यार। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूं कि आप मेरे जैसे काले हो फिर भी मेरे पे हंस रहे हो। ये मजा होता है। अब क्या है, मुझे बड़ा बुरा लगता था भाई। आपको भी बुरा लगेगा ना, कोई आपके रंग से बुलाएगा ऐसे। मैं एक चीज समझ गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो सबसे क्लोज दोस्त था, भाई काटिए, मेरा जो सबसे क्लोज दोस्त था उसका नाम था जगन। वो मुझे कल्लू बुलाता था। मैं उसके पास गया, मैं, जगन तू मुझे कल्लू क्यों बुलाता है? कहता तू भी तो मेरे को जग्गू बुलाता है। मैंने कहा मैं तेरे को जग्गू प्यार से बुलाता हूं। कहता मैं भी तुझे कल्लू प्यार से बुलाता हूं। मैंने कहा ठीक है, आज से मैं तुझे जगन बुलाऊंगा, जगन। कहता ठीक है, आज से मैं तुझे कालू बुलाऊंगा, कालू। अब मैंने कहा मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने बहुत बड़ा गलती किया, उसकी मदर के पास चला गया कंप्लेन करने। देखो, उसकी जो मम्मी है ना, शी इज अ पंजाबी मम्मी, उनके साथ कंप्लेन करना। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या? मैं जैसे उनके पास गया, मैं कहा आंटी। आंटी ने कहा शीश। वो लोग पूरा नाम नहीं लेते पंजाबी में ना। आशीष का नाम हो गया शीश। क्या हो गया? शीशे, करेक्ट, शीशे। आंटी ने उधर जाते बोले शीशे। मैं आंटी मुझे कंप्लेन करनी है। कहते शीशे अंदर आ, मैं हलवा बनाया। अब मैं गया था जगन के अगेंस्ट कंप्लेन करने, लेकिन जैसे ही उन्होंने हलवे की बात की, मैं फिसल गया। मैंने हलवा अपने हाथ में लिया और खाना शुरू किया। ओह, मैं आंटी को मांग बोला, आंटी। आंटी कह रहे और दूं? मैंने कहा हाँ आंटी। मैंने और ले लिया और खाया। जैसे ही हलवा खत्म हुआ, मैंने कहा आंटी आपको कुछ कहना है? आंटी ने बोल पुत्र। मैंने बोला आंटी जगन मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाता। आंटी ने कहा केड़े नाम से बुलाता है? अब मैं अपने मुंह से कैसे बोलूं किस नाम से बुलाता है? निजे मुंह के निजे बेइज्जती खराब थोड़ा ना खुद तुम्हारी। तो मैंने बोला आंटी वो मुझे क और उसके बाद आलू बोलता है। आंटी ने थोड़ा सोचा और कहा वो तुझे कचालू क्यों बुलाता है? मैं कहा आंटी मुझे कचालू नहीं बुलाता, वो मुझे कालू बुलाता है, कालू। जैसे ही आंटी ने ये सुना, जेई आंटी यही सुन लो कि आमा के वो कालू बोले, आंटी के हाथ से करछी छूट गया। आंटी ने अपने हाथ को दुपट्टे से पोंछा, मेरे पास आई, बहुत प्यार से मेरे बालों को यूं किया और फिर बोली पुत्र वो तो तू है। खूब हंसी हंसते ना हमारे ऊपर, की खुशी है जानता हम तुम्हें तो कालो, आमी कालो जगतेर आलो।
हेलो की ना, बड़ी बड़ी भालो, सत्य कथा की ना। तो ये सब सुनकर अभी तक मैं चलता आ रहा हूं। बल्कि आपको बात बताऊं, मेरे रंग की बात अभी भी लोग मुझे करते हैं। मेरा जो आधार कार्ड है ना, उस पे जो मेरा फोटो है, भाई क्या बताऊं, आप सबका फोटो कलर है, मेरा फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है, बिल्कुल काला चेहरा है मेरा। मैंने उनको ईमेल लिखा, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, मेरा फोटो ऐसा क्यों डाल रखा है। उन्होंने चेक करके वापस ईमेल भेजा, नहीं सर आपका फोटो कलर में ही है। पर आपको पता है मैं मोटिवेशन स्पीकर भी हूं, मैं लोगों को मोटिवेट करता हूं कि जो भी आप चाहते हैं वो पॉसिबल है। तो पता है मैंने क्या किया, आधार कार्ड पे मेरा फोटो जरूर ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन सही जगह पर घर खरीद के एड्रेस में मैंने गोरे गांव लिखवा लिया है। होता है ना, कुछ तो गोरा है मेरे भाई आधार कार्ड में। भाई तालियां बहुत जरूरी है। फैंटास्टिक खड़गपुर। आपको एक बात बताऊं, हमारे दिल्ली में हम लोग जोक कहा करते थे जब ठंड होती थी, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। अब मुझे खड़गपुर में यही लग रहा है कि खड़गपुर के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, क्योंकि सचमुच ठंडा। इससे ज्यादा ठंड बढ़ेगी क्या यहां पर? हेलो, ऑलरेडी हो चुका है, अच्छा कम हो रहा है, फैंटास्टिक। तो इसका मतलब ये जैकेट जो आज मैंने पहना है कुछ दिनों बाद जरूरत नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दोस्त हैं जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, है ना? है ना? वो वही है, वही है, वो कह रहा है वो है। सब लोग जानते हैं ऐसे को। आप लोगों को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं ना? आपको पता है मुझे वैसे ही लोग अच्छे लगते हैं। हाँ, पता है दूसरे टाइप के लोग क्या, एक होते हैं जो पीठ पीछे बुराई करते हैं, एक होते हैं जो मुंह पे बुराई करते हैं। उनकी स्पेशलिस्ट है। वो लोग बोलते हैं भाई आशीष देखो हम तो सच ही बात बोलते हैं। आप मिले वैसे लोगों से? भाई देखो हो सकता है बात बुरी लगे पर सच्ची बात तो सुन ही लो, और उसके बाद कुछ भी बोल देते हैं। जैसे मुझे देखते ही कहेंगे आशीष देखो बुरा लग सकता है तेरे को, लेकिन देख तू कितना मोटा है। अरे भाई मेरे को बड़ी दिक्कत होती है। मैं लोगों को कहता हूं भाई तुमको अगर मेरे बारे में बुरा कहना ही है मेरे मुंह पे मत बोलो, घर जाओ और पेट भर के मेरे बारे में बुराई करो, क्योंकि मुंह पे बोलना बड़ा बुरा लगता है भाई, फैक्ट है। तो मेरे दो दोस्त हैं, उनका नाम है राजेश और सुनीता। क्या नाम है? राजेश मेरा कॉलेज का दोस्त है, स्कूल का दोस्त, बड़ा कमाल का दोस्त है। उसकी जो वाइफ है ना सुनीता, वो कमाल का बिरयानी बनाती है। क्या बनाती है? वो है किचन किंग और राजेश है गॉसिप क्वीन। सचमुच राजेश की खासियत है अगर आप उसके पास जाओ तो वो किसी की बुराई करेगा। अब पता है गॉसिप किसको कहते हैं? मैं बता दूं, गॉसिप ये है कि दो लोग मिलके तीसरे का चौथा नहीं करते। तो भाई साहब मैं उनके घर पहुंचा बिरयानी खाने, मैं एक्साइटेड बिरयानी खाने पहुंच गया। वहां पे राजेश कहता है और आशीष बता रंजन कैसा है? मैं कहा रंजन? कहता रंजन, अबे रंजन हमारा दोस्त रंजन। अब रंजन का अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए राजेश पूछ रहा है रंजन। होता है ना कुछ लोग, रंजन कैसा है? मैंने कहा नहीं यार अच्छा नहीं चल रहा। अच्छा नहीं चल रहा? अच्छा आपको पता है ना कि हम बुराई क्यों नहीं करते? हम बुराई इसलिए नहीं करते कि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हम नरक में जाते हैं, लेकिन जो गॉसिप करने के उस्ताद हैं उनकी खासियत यह होती है कि वो खुद बुराई नहीं करते, वो आपसे कराते हैं। राजेश ये कर रहा था, वो चाह रहा था कि मैं बुराई करूं। अब मैं भी हट रहा था, मैंने कहा नहीं यार वो ठीक ही चल रहा है। नहीं ठीक तो नहीं चल रहा आशीष, बता ना कैसा चल रहा है रंजन का? मुंह से लार टपक रहा था उसका ताकि वो डिस्कस करे। खाने के पहले उसको गुलाब जामुन दिख रही थी मेरी बातों में। मैंने कहा यार उसका ठीक नहीं चल रहा। अरे सचमुच ठीक नहीं चल रहा? मैंने कहा हाँ ठीक नहीं चल रहा। और उसका नया बिजनेस? मैंने कहा नया बिजनेस बैठ गया। क्या? ओ गॉश मुझे इतना दुख हो रहा है। अच्छा वो कह रहा था दुख हो रहा है, लेकिन उसके मुंह से हंसी दिख रही थी। होता है ना कुछ लोग बुराई करते हैं किसी की, मुंह में हंसी दिखाते हैं, बहुत शौकते हैं। अब उसकी सडनली बीवी कहती है आशीष तुम खाना खा लो। मैंने कहा हाँ मैं बिरयानी खाने जा रहा हूं। अब उसकी बात को छोड़ के मैं बिरयानी की तरफ बढ़ा, और अब एक कमाल की चीज हो गई। देखो ये खड़ा था राजेश, ये खड़ी थी सुनीता, यहां था बिरयानी, लेकिन ठीक मेरे सामने खड़ा हुआ था एक फुल ग्रोन काले रंग का
मस्कुलर रॉटवाइलर, पीले पीले दांतों के साथ। आप में से किसी ने रॉटवाइलर कुत्ता देखा है? बोलो ये। भाई साहब बहुत खूंखार कुत्ता होता है, ऐसे करके उसकी आवाज भी ऐसी होती है, सामने खड़ा हुआ है मेरे, उसका काला मुंह और उसके ऊपर पीले पीले दांत, और भी दिक्कत कि उसने चेन नहीं पहना हुआ। अच्छा, गिव अ शाउट ऑल ऑफ यू हु लव डॉग्स, से ये। मुझे भी कुत्ते बहुत पसंद हैं। आपके घर में भाई अपने घर में रखो। क्या है, आप अगर ऐसे किसी के घर जाते हैं ना जिनके पास कुत्ता होता है, आपका कुत्ता आसपास घूमेगा, कर रहा है, आप कह रहे बबरे, वो कहीं कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। अबे हमारी हालत खराब है। तो भाई साहब मैं उनके घर में पहुंचा हूं, वो रॉटवाइलर ऐसा खड़ा हुआ है। अब मैं कहना चाहता हूं उसको, अरे कुत्ते को बांध, लेकिन आपको पता है ना कि ऐसे घर में आप नहीं कह सकते। ये कुत्तों के साथ उनका कनेक्शन होता है। सडनली सुनीता मुड़ के मुझे कहती है, आशीष हमारे लेटेस्ट फैमिली मेंबर से मिलो। मैं कहा साला फैमिली मेंबर भी कुत्ता, वो भी जिसका पट्टा नहीं लगा हुआ, बड़े बड़े दांत वाला। तो मैं भी बड़े तमीज से बोला, मैंने कहा ओह वेरी नाइस, इनका नाम क्या है? मैंने बोला इनका नाम क्या है? कहती है तुम्हें गेस करना पड़ेगा। मैंने कहा अबे क्यों, कैसे गेस करूं? कहते हैं इसका नाम बहुत क्यूट है। मैंने कहा क्या है? कहती है इसका नाम है शिकारा। अबे शिकारा किधर से क्यूट नाम हुआ बे? स्वीटी होता है क्यूट मान सकता, शिकारा। पर क्या मैं उसको बोल सका कि क्यूट नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तो बिरयानी के पीछे लगा हुआ था। जैसे ही उसने कहा शिकारा, मैंने कहा हाउ क्यूट, कितना प्यारा, कितना क्यूट नाम है करके मैंने अपने आप को जैसे बिरयानी सर्व करने लगा। फिर वो कहती है रुको। मैंने कहा क्या हुआ? मूविंग कंपनी, योर कवरिंग कंपनी। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है तुम्हें पहले गेस करना पड़ेगा कि इसका नाम सितारा कैसे पड़ा। अच्छा, आप जानते हैं कुछ एक घर होते हैं जहां पर खाना खाने के पहले वो लोग केबीसी खिलाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, इस सवाल का जवाब दीजिए उसके बाद खाना खाइए। मैंने कहा भाई क्या ऑप्शन मेरे पास? कहते हम लोग एक शहर पे गए, वहां पर हमको ये शिकारा नाम का आइडिया आया। आप में से कोई बता सकता है कौन से शहर में शिकारा का आइडिया आ सकता है? श्रीनगर, दैट्स राइट। मैंने भी बोला श्रीनगर। कहती है गलत, हैदराबाद। अबे मैंने कहा हैदराबाद किधर यार, तू कुछ भी बोल देती है तू। कहती है हाँ हैदराबाद। मैंने कैसा हैदराबाद? कहती है यू नो, आपको पता नहीं, हमारे राजेश का एक बचपन का दोस्त ना आजकल हैदराबाद में शिफ्ट कर गया है, वो बिल्कुल हैदराबादी हो गया है, उसका नाम है जगन। मैं कहा वो साला जगन? कहता हाँ जगन तो हैदराबाद शिफ्ट हो गया है। और पता है कैसे बात करता है हैदराबाद की भाषा में? जैसे ही आगे बोलते है, क्या भाभी कितना सारा बाद मिला आपसे, अरे सुकूना से बैठे हो दादी, ये देखो हमारा कुत्ता क्या स्टंटी है, ये क्या शिकारा करता मेरा ये रॉटवाइलर। और ये बोल के वो अंदर चली गई, अरे मैं तुम्हारे लिए खीर बना के लाती हूं। अब मैंने तब तक अपने को बिरयानी सर्व कर ली थी, मैंने खाना शुरू किया। मैंने कहा यार राजेश तेरी बीवी बहुत पकाती है। ओह लेकिन क्या पकाती है यार। और फिर मैंने कहा यार तेरे को बिल्कुल अकल नहीं है, जगन ने अपने कुत्ते का नाम शिकारा रख दिया, तुमने भी रख लिया। कहता है जगन ने अपने कुत्ते का नाम शिकारा नहीं कालू रखा है। मैडम आप हंस रही हैं यहां पर, इधर पास में बैठ के हंस रही हैं, ये स्पीकर आगे पास बैठ के। मैडम हमारा दिल का ख्याल करो। हाँ क्या काले रंग पर सब लोग हंसने के लिए तैयार है, मजाक नहीं कर रहा हूं। जैसे ही उसने कहा जगन ने अपने कुत्ते का नाम कालू रखा है, मेरे जो हाथ में मटन का टुकड़ा था ना, सोया चाप लगने लगा। पर मैं खाता रहा। पता है क्यों? क्योंकि दिल्ली में मैंने एक चीज सीखी थी, चाहे आपके साथ कितनी भी लोग बदतमीजी करे, खाने को मत छोड़ो। मैं खाता रहा। मैं कहा यार कमाल का है। मैं खाए जा रहा था, यहाँ मटन का पीस था, जिसके नीचे बिरयानी थी, बिरयानी के नीचे प्लेट था, प्लेट के नीचे टेबल, टेबल के नीचे मेरे दो घुटने, और मेरे दो घुटने और पेट के बीच में खुला हुआ मुंह। भाई साहब शिकारा,
यहां पर मेरे दोनों टांगों के बीच में ऊपर देखता हुआ। भाई साहब आप सोच सकते हैं, रॉटवाइलर वहां पीले दांत के साथ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग जो हंस रहे हैं, आप लोग हंस रहे हैं, आपको पता नहीं है, नॉर्मल कुत्ते काटते हैं, लेकिन रॉटवाइलर छीलता है। मतलब अगर मुझे छील दिया तो वहां मेरा क्या होगा कालिया? मेरा तो भविष्य खतरे में था। भाई साहब हंस लो तुम, बेटा तुम्हारे साथ कभी होगा ना, तुम देख दो मैं हंसूंगा कि नहीं। अब हंस रही है मैडम, सब कितना खुश है, देख कुत्ता वहां पे खड़ा हुआ उसके। अब मैं खा रहा हूं, सडनली मैंने राजेश को बोला, राजेश। अच्छा मैंने तो जल्दी से हिला नहीं, मैंने ऐसा कहा था, अरे राजेश देख। अगर मैं ऐसा कहता तो रॉटवाइलर तो काट देता। जैसे ही काट देता मैं हॉस्पिटल में पड़ा होता, लोग कहता है हिलना नहीं चाहिए था तुम्हें। होता है लोग शिक्षा देने में, तो नड़ा उचित ছিল না, বসে থাকতে শান্ত থাকতে, এই তো ভুল করলে। मैं भाई साहब यूं जाम बैठा हुआ हूं, मैं कहा राजेश, राजेश खा रहा है खम खम, जैसे मैं अपने रील्स में खाता हूं ना गंदी तरीके से, वैसे वो खा रहा है खम खम खा रहा है। मैं कहा राजेश देखना, कहता देख मत खा। मैंने कहा देख देख, कहता क्या देखूं? मैंने कहा देख मैं मटन खा रहा हूं, मुझे मटन खाना पसंद है, खिलाना नहीं। कहता है यार कुछ नहीं करेगा वो। मैंने कहा अगर कर दिया तो? पता है क्या कहता है? कहता है आशीष डोंट वरी, उसको इंजेक्शन पड़ा हुआ है। मैं कहा पागल हो गया? तो उसको इंजेक्शन पड़ा हुआ तो क्या हुआ, उसका दांत तो है, फाड़ देगा मेरे को। फिर सडनली आवाज उठाकर कहता है आशीष डोंट ओवर रिएक्ट, उसने आज तक किसी को नहीं काटा। जैसे ही ये बोला ना, अंदर से सुनीता सत्यभामा बन गई, सत्य की पुतली। अंदर से बोली झूठ मत बोलो राजेश। मैंने बोला क्या? कहती हां, करके टिक 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 करके बाहर आई, ऐसे करके टिक टिक टिक। आके ना खीर रखी मेरे सामने, पायस रखा। ओ आशीष आई मस्ट कंप्लीट द स्टोरी। तुम्हें बताऊं, जगन का ना एक रॉटवाइलर है, और पता है उसका नाम क्या है? मैंने कहा हाँ कालू। कहते तुम्हें राजेश ने बता दिया। यू नो क्या हुआ? यू नो इट सीम्स जगन का दिल्ली में एक दोस्त था। मैंने कहा बताओ। कहती जगन उसको बहुत प्यार करता था, उसको प्यार से कालू बुलाता था, लेकिन वो कितना गंदा बच्चा था। वो उसकी माँ के पास आके उनके हाथ का हलवा खाता था और उसकी बुराई करता था। उस श्राप से बचने के लिए उसने अपने कुत्ते का नाम कालू रख दिया। फिर मुझे देख के कहती है आशीष तुम क्यों नहीं हंस रहे? अब राजेश कहता है वो नहीं हंस रहा क्योंकि शिकू वहां पर खड़ा है। साला कहता है शिकू। अब सुनीता का चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। सुनीता ने एकदम नीचे देखा और उसको एकदम गुस्सा आ गया। कहती है शिकू। अब शिकू अब तक चुपचाप मेरी तरफ देख रहा था। जैसे ही उसकी मां ने बोला शिकू, ऐसे मुड़ के बोला, ऐसे बोला। फिर कहती है शिकू अगर तुमने अंकल को काटी काटी किया तो मैं तुमको पीटी पीटी करूंगी। अबे ये कोई क्यूट टाइम था? अपने कुत्ते को प्यार से बात करने का टाइम था? भाई साहब उसको तो लगा डेंजर, उसको लगा इस अंकल की वजह से मम्मी उसे पीटेगी। अब तक वो शांत था, सडनली बोला, जैसे ही बोला हो, मजाक नहीं करो, मेरा हार्ट एकदम बाहर आ गया। मैंने एकदम बोला, मैंने कहा प्लीज सुनीता उसको मारो मत, वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। मैं किसी भी तरीके से उसको बचाना चाहता था। उसके बाद सडनली राजेश बोला सुनीता तुम ऐसा क्यों कर रही हो, वो कुछ नहीं करेगा। कहती है चुप करो राजेश, तुम्हें पता है पिछले हफ्ते जब उसने रंजन को काटा था। मैंने कहा क्या पिछले हफ्ते रंजन को काटा था? कहती हाँ रंजन को काटा था। अरे वो तो ठीक है, 2-3 दिन हॉस्पिटल में था, फिर जो स्टिचेस लग के वो छूट गया। लेकिन अब तुमको पता है आशीष, पूरा कारपेट इस अपने खून से भर गया था। ड्राई क्लीनिंग में कितना खर्चा आया था। उन लोगों को अपने कारपेट की चिंता थी भाई, मेरी चिंता नहीं थी। यह प्रॉब्लम होती है तुम डॉग लवर्स की।
भाई साहब मैं थर थर कांप रहा हूं। मैंने कहा सुनीता प्लीज मुझे बचा लो। और तब सुनीता को एक कमाल का आइडिया आया। भाई साहब क्या आइडिया आया? सुनीता को लगा कि वो तो पहुंच नहीं सकती। उसने कहा शिकू, शिकू जो ऐसा कर रहा था, जैसे कहा शिकू, शिकू कहता है कहते शिकू, शिकू मामा के पास आओ, कहते मम्मा के पास आओ, मम्मी ने तुम्हारे लिए मटन बॉल्स बनाए हैं, मीट के कोफ्ते। मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा, शिकू ने चूज किया कि उस दिन फ्रेश मीट बॉल्स खाएगा। पता नहीं तुम लोग क्यों हंस रहे हो यार। ऑल दैट आई टेल यू कि उसके बाद से मैं इंटैक्ट हूं भाई, पूरा हूं, मेरा कुछ भी नहीं टूटा। क्यों हंस रहे हो भाई? लेकिन उस दिन के बाद मैं कभी उनके घर वापस नहीं गया। और जहां तक जगन का सवाल है ना, साले को ब्लॉक किया मैंने, साला कुत्ता। नहीं बेटा, आज बादल का नहीं, आज हम बारिश का डायलॉग करने आए हैं। तो कुत्ते बिल्ले की बात जब हो रही है तो मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं। मेरी पहली पिक्चर जो मुझे मिली थी उसका नाम बताऊं? कुत्ते की मौत। आप में से कितने ना मेरी पिक्चर देखी है कुत्ते की मौत? खड़गपुर में किसी ने नहीं देखी। मैं बताता हूं, मैं दिल्ली में था भाई साहब, दिल्ली में थिएटर करता था, मुझे पहली पिक्चर मिली, बाकी सब दोस्तों में मुझे मिली है। तो मैं तो स्टाइल में अपने दोस्तों के पास गया, पिक्चर मिली है। अच्छा, दिल्ली वाले ना टोटल तो अच्छा कौन सी पिक्चर मिली तेरे को? मैंने कहा नाम नहीं बताऊंगा सालों को, नाम बताकर खींचेंगे। मैंने कहा पिक्चर मिली है, कहता नाम बता। मैंने कहा छोड़ना, पिक्चर मिली। अबे नाम बताना कालू। मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा कुत्ते की मौत। कहता है पहली पिक्चर में ही कुत्ता बन के मरेगा तू? दिल्ली वाले ना बड़े वो होते। मैंने कहा बेटा ठीक है पिक्चर बनने दे, तेरे को प्रीमियर पे नहीं बुलाऊंगा। ऊपर भगवान दे, भगवान ने मेरी बात सुन ली। भाई साहब टेप मत करिए, वीडियो मत करिए। भगवान ने मेरी बात सुन ली। मेरी जो पहली पिक्चर है जिसके लिए मैं बंबई गया था, जिसका नाम था कुत्ते की मौत, पिक्चर ही नहीं बनी। कितने खुश हो रहे हो ना, हैं बेटे? हमारे सपने टूटे, आप खुश हो रहे हैं। पर आपको एक मजेदार बात बताऊं, और दिल की बात। बंबई को लोग कहते हैं ये सपनों का शहर है, ऐसा कहते हैं ना। बंबई सपनों का शहर नहीं है दोस्त। बंबई उन लोगों का शहर है जो सपनों के टूटने के बावजूद वहां टिके रहते हैं। और मेरे खड़गपुर के प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं। मैं आप लोगों को जानता हूं, आप में से सब वैसे हैं, आप में से सब वैसे हैं जो सपनों के टूटने के बावजूद सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। रखते हैं कि नहीं? आवाज नहीं आई, रखते हैं कि नहीं? तो ये वादा है दोस्त, जिंदगी में हमें टिके रहना है और हमें काम करते रहना है। तो जो जिंदगी में हम लोग बहुत सारी चीजें होती है, मैं आपको एक चीज बता दूं, एक बचपन की मेरी एक बात बताऊं मजेदार। तो मेरी जो माता जी थी ना, वो थी बंगाली। আমার মা বাঙালি কিন্তু রাজস্থানের। হ্যাঁ, বিয়ের কথা এখন বলবো না, পরে বলবো। আর বিয়ের কথা শোনার জন্য ওয়েট করছে। হ্যাঁ, দুষ্টু মানে, হ্যাঁ ওটা টিকিট দিয়ে আসতে হবে, তখন শোনাবো। তো আমার মা বাঙালি, আমার বাবা মালয়ালি, মা আজমিরের বাঙালি, अजमेर की बंगाली, और मेरे पिताजी केरल के। আমার বাবা একদম देवता समान किस्म। सब कथा थे इट्स ऑल राइट बेटा, इट इज ऑल राइट, इट्स ऑल राइट बेटू। माँ और बाबा ने एकदम जैसे नरम पाव होता है ना, सॉफ्ट। माँ भी पाव, लेकिन कड़क पाव। माँ कथक की गुरु थी। माँ का दाहिना हाथ बिल्कुल साफ था, मेरे को पीट पीट के बांग्लाते मारा बोझो तो चौड़ मेरे आमी बड़ो হয়েছি চড় খেয়ে। মার যেই আমার বার্থ হলো, মার লাগলো আরো ভালো হতে পারে। চড় টাকাক, কথা কথা চড় পাট। তো ভাই সাহেব, হ্যাঁ মার খেয়ে খেয়ে বড় হয়েছি, মানে খুবই টেনশন।
এবার এইটা ভাববেন না कि আমি ये मत सोचिए कि मैं पढ़ाई में बुरा था, पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था। मेरी प्रॉब्लम लिखाई में थी, इसलिए एग्जाम में नंबर कम आते थे। सचमुच, मतलब पढ़ में लेता था, लिखने में प्रॉब्लम थी, इसलिए बाकी सब्जेक्ट्स में नंबर कम आते थे और मैथ्स में तो कमाल था, आते ही नहीं थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था, क्या था कि जब आप रिपोर्ट कार्ड, हमारे क्लास में तब पीरियोडिकल एग्जाम होते थे, एवरी 1.5 मंथ एग्जाम होते थे, एवरी 1.5 मंथ में मैथ्स में फेल होता था, एवरी 1.5 मंथ मुझे रिपोर्ट कार्ड लेके मां के पास जाना पड़ता था साइन करने। नाउ माय मदर अंडरस्टूड कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो उन्होंने मेरे प्रति अपना एक्सपेक्टेशन लोअर कर लिया था। देखो, बंगाली माँ का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहता है ना, तो वो समझ गई थी मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो कहा बेटा ठीक है कोई बात नहीं, तू सिर्फ आईआईटी कर ले। उन्होंने एक्सपेक्टेशन लोअर करके वो आईआईटी आ गई थी। तो जब जब मैं उनके पास रिपोर्ट कार्ड लेके जाता था मेरा रेड मार्क के साथ, मां का दिल टूटता था और मां मेरा गाल फोड़ती थी। भाई साहब इतना पिटता था हर 1.5 महीने में ना, मैंने एक दिन कहा कि नहीं चलेगा यार, आई वॉन्ट टू लिव विदाउट पेन, बनता है ना, बैठा छाड़ा आमी जीवित थकते चाहिए। तो मैंने जाके बता दिया घर में कि मां, हमारे स्कूल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गया, इसलिए साल में सिर्फ एक एग्जाम होगा, साल के एंड में। भाई साहब ये तो सेट हो गया वहां पे, फैंटास्टिक हो गया। मैंने कहा पिटूंगा तो एक ही बार पिटूंगा साल के एंड में, लेकिन जब कोई फटा हुआ पॉकेट को सिलना होता है ना, दोनों तरफ से सिलना होता है, भैया रिपोर्ट कार्ड लेके स्कूल जाना पड़ता। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि सिर्फ एक टाइप के बच्चे हैं जो स्कूल में, जिनको अपने मां बाप से रिपोर्ट कार्ड साइन नहीं कराना पड़ता। कौन से बच्चे? अनाथ बच्चे। दिल पे मत ले बेटा, बुरा मत फील करा। अनाथ बच्चों को रिपोर्ट कार्ड साइन कराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मेरे मां बाप थे। रिलैक्स, टेक इट इजी। भाई मैं अपने पिटने से बचना चाहता था, मुझे कुछ स्टेप लेना था, लेकिन डोंट वरी मैं तब तक विलेन नहीं बना था, मैं सिर्फ स्टोरी टेलर था। तो मैंने कहा एक स्टोरी और बनाऊं और वो स्कूल में जाके सुनाऊं, और उस कहानी में ना थोड़ा इमोशन भी डाल दो, और मैंने वो डाल दिया। मेरी जो क्लास टीचर थी, उनका नाम था मिसेस खरबंदा, वो मैथ्स की भी टीचर थी। मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैम ने बोला आशीष, मैं कहा मैम बाबा का ट्रांसफर हो गया है। बाबा वैसे भी टूरिंग जॉब था। मैंने कहा बाबा का ट्रांसफर हो गया मणिपुर, और मम्मी ने कहा कि नहीं मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, इसलिए वो भी चली गई हैं। कमाल हो गया भाई साहब, इतना कमाल हो गया कि पूछो मत। उसके बाद तो माई लाइफ बिकेम याहू। मिसेस खरबंदा तो मेरे लिए बीच बीच में खाना भी लाया करती थी। और आपको पता है पीरियोडिकल एग्जाम होते रहे, बाकी भी फेल होते रहे, मैं भी फेल होता रहा, वो पिटते थे, मैडम मेरे लिए बादाम का हलवा लाती थी। दूसरे के बर्थडे में पहला केक मुझे मिलता था। अगर कोई मुझे कालू कहे तो वो रस्टिकेट होता था। लाइव जिंदगी एकदम जिंगल आला चल रही थी। एक दिन मैं ऐसे ही डांस करते हुए आफ्टर माय स्पोर्ट्स क्लास में क्लास की तरफ बढ़ा, सडनली मुझे दिखा, ओए क्लास के बाहर 2 लेडीज खड़ी हुई थी। एक तो मिसेस खरबंदा थी, और दूसरी जो लेडी थी ना, उन्होंने बिल्कुल वैसी साड़ी पहनी थी जैसी मेरी मां पहनती थी। भाई साहब मेरी मां थी वो। मुझे ज्योतिष में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे मेरा निकट भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा था। मैं फट फट करके पास पहुंचा अपने को बचाने के लिए। यहां पर मुझे पता है कुछ स्कूल के प्रिंसिपल्स भी हैं, प्लीज माइंड मत करिएगा सर, बचने के लिए बच्चा कुछ भी कर सकता है। मैं पास गया और मैंने मां को बोला, मां कब आई? जवाब मां ने नहीं दिया, मिसेस खरबंदा ने दिया। अभी आई हैं। जैसे ही पता चला न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, सीधा मणिपुर से यहां आ गई तुम्हारा मुंह मीठा करने। अब मैं बता रहा हूं बच्चों, तुम्हारी उम्र में ये सब नहीं होता, लेकिन हमारी उम्र में मुंह मीठा करना, स्पेशली तब जब मां नाराज है, वाज बैड न्यूज। मां ने उस दिन भारतीय विद्या भवन के कॉरिडोर में मेरा मुंह मीठा किया।
और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप में से जो गोरे हैं ना, आप लोग सब जो गोरे हैं, जरा तुम लोग फौरसा आचो, ऐसे करके हाथ लग जाए ना, तुम्हारा थोड़ा नीला पड़ जाता है। बेटा मेरे चेहरे में ना बेगुनी हो जाता है, रंगटा बेगुनी हो जाए। বিশ্বাস করো গুরু, ভারতীয় বিদ্যা ভবনের ওই করিডোরে মা আমাকে বেগুনি রঙের অক্টোপাস বানিয়ে দিয়েছিল। ফাট ফাট ফাট, আমি কি করি, আমি এমনি বসে আছি। কিন্তু আপনাকে একটা अमेजिंग खबर बताऊं, मेरे जैसा दुष्ट, पापी और निर्लज्ज बच्चे के लिए भगवान सिर्फ एक वरदान देता है। पता है वो क्या है? एक नॉन वायलेंट फादर, मतलब एक फादर जो कभी नहीं पीटता। अब मां मुझे लेकर गई घर, पर मुझे एक चिंता थी। पता है क्या चिंता? मैंने कहा अगर बाबा ने आज अपने चरित्र को छोड़ दिया तो हो सकता ना, कहते दाड़ मारा, फिर कहा आई एम सॉरी आशीष, मैं भूल गया था, मैं नॉन वायलेंट हूं। मैं थर थर कांप रहा हूं। मैं घर पहुंचा टोटल एकदम ऐसे करके उधर पास बैंगन करके खड़ा हुआ हूं, और मां बाबा को कहती है তোমার জন্য হয়েছে এমন, তুমি একে হাত ছাড়া করেছো, তুমি একে কিছু বলো না তাই এমন করেছো। মা उसको उकसा रही है, তুমি এমন করেছো তাই জন্য আজ এই করেছে, আজকে এইটা করেছে, কালকে কি করবে। बाबा का चेहरा गुस्सा होता रहा, आंखें बड़ी हो गई, मैं कांप रहा हूं। मैंने कहा बाबा बैंगन को देख के आज भरता बना ही देंगे। भाई साहब हंसो मत, मैं डरा हुआ था, थर थर कांप रहा था। और फिर बाबा का गुस्सा हुआ और बाबा ने कहा क्यों किया। जैसे ही बाबा ने कहा क्यों किया, मैं ऐसे किया, और बाबा ने कहा क्यों किया, और मां की तरफ मुड़ के कहा क्यों किया तुमने उसको ऐसा। अरे बाबा मां को डांट रहे थे। भाई साहब मैंने कहा थैंक यू मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे पिता, आपने चरित्र को नहीं छोड़ा। फिर बाबा ने मेरी तरफ देखकर कहा बेटू जो भी मार्क्स आए तुम घर में आके बताना, इट्स ऑल राइट। जी हां, ताली बजाइए मेरे भाई, क्योंकि जरूरी है कि कोई आप अगर कोई गलती करे, कोई घर में पीटे बिना ये कहे इट्स ऑल राइट। और कसम से कह रहा हूं इट्स ऑल राइट उस दिन के बाद से मेरे लिए एक ऑल पर्पस पास बन गया था। क्योंकि देखिए ये फैक्ट है कि मैं पढ़ाई में मतलब मैथ्स में अच्छा नहीं था, लेकिन मैं अभिनेता बनना चाहता था। मां भी जानती थी कि मैं अभिनेता बनना चाहता था, तो शी यूज्ड टू एनकरेज मी टू, शायद वो मैं थिएटर देखूं, फिल्म देखूं, तो मुझे फिल्म देखने बीच बीच में भेजती थी। देखिए हमारे टाइम पे फिल्म्स इतने कॉमन नहीं थे। आजकल जब हम सबाई फिल्म देखते चले जाए ना, हमारे टाइम में तो कॉमन छिलो ना। तो मां मुझे जब फिल्म देखने भेजती थी ना, मैं टिप टॉप गए जाता था। तो मेरे पास एक येलो रंग का स्वेड पैंट था, और स्वेड का येलो स्वेड का जैकेट भी था। वो अलग बात है, गर्मियां थी, दिल्ली की गर्मियां। तो मैं जा रहा था पिक्चर देखने, पिक्चर का नाम था क्या नाम था यहां में आया था किसी को, भूपिन खुद्दार। अमिताभ बच्चन का कोई फैन है? बोलो ये कोई फैन नहीं है अमिताभ बच्चन। बेटा हम लोग अमिताभ बच्चन के फैन है। भाई अमिताभ बच्चन कोई फैन है कि नहीं? सही ये फैंटास्टिक, अपन भी अमिताभ बच्चन के फैन। खुद्दार पिक्चर जा रहे हैं हम लोग, डिलाइट, मेरे दोस्त बापी के साथ, पीला स्वेट का पैंट, पीला स्वेट का जैकेट। और मां जब घर से बाहर निकलती थी ना, मां बड़े कॉन्शियस थी कि मेरा ये रंग था। मेरे मुंह के ऊपर ना नाइसिल पाउडर लगाती थी, एतो मोटा पाउडर के लगी है, उसके ऊपर मैंने काला चश्मा पहना हुआ था। मैं और बापी पहुंच गए भाई साहब डिलाइट सिनेमा। भाई साहब पिक्चर देखेंगे। वहां जाके मैं टिकट खरीदने का लाइन पे लग गया। ऐसे करके मैं आगे बढ़ रहा हूं, लाइन ले रहा हूं, बड़ा एक्साइटेड हूं। हम लोग पहुंच गए सुबह 8 बजे, हमको 12 बजे की टिकट लेनी है। वहां पर एक बंदा ना वहां पर टिकट बेच रहा था, 5 को 25, 5 को 25, 5 को 25, 5 को 25। मैंने देखा, मैंने बापी को बोला बापी क्या हो रहा है? बापी कहता है वो टिकट ब्लैक कर रहा है। मैं कहा ये टिकट ब्लैक करना क्या हुआ? कहता आशीष देख हाउसफुल हुआ है ना, उसके पास एक्स्ट्रा टिकट वो बेच रहा है। मैंने कहा यार ये तो ब्रिलियंट आइडिया है, 5 का 25, मतलब अगर हमारे पास भी 2 टिकट एक्स्ट्रा हो तो हम और चिकन खाएंगे। बापी कहता है पागल हो गया क्या, मासी तो पैसा दिए तोके, हमला आरो खाबो हमरा। बापी ने बोला आशीष इट इज इलीगल। मैंने बाबा का ज्ञान उसे दे दिया। मैंने बोला बापी बोल के मैंने ऐसा काम किया विच वॉज नॉट ऑल राइट। जब तक मैं टिकट काउंटर पे पहुंचा, मैंने अपने शो के तो 2 एक्स्ट्रा टिकट खरीदे,
अगले शो के भी 2 एक्स्ट्रा टिकट खरीद लिए। अब मेरे जेब में पैसे नहीं थे। बापी और मैं बाहर घूम रहे, 3 घंटे टना 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 घूम रहे। अपने शो के टाइम पर हम लोग पहुंचे, कमाल था भाई साहब, शो हाउसफुल था। उधर वो बंदा बेच रहा था 5 का 25, 5 का 25। इधर मैं शुरू हो गया 5 का 25, 5 का 25। देखो मैं सोच रहा था फ्री मार्केट है भाई साहब, अगर वो छोले बेच सकता है तो मैं भी छोले बेच सकता हूं। मैं लिटरली सोच रहा था कि वो छोले भटूरे भेज रहा है, मैं भी छोले भटूरे भेज रहा हूं। मुझे पता ही नहीं ये सब गलत है। अच्छा वो बंदा देख रहा है 5 का 25, 5 का 25। उसको एक कॉम्पिटिटर दिख रहा है, मेरे को एक मेंटर दिख रहा है। मैं तो सीखना चाहता हूं, मेरा नाम ही है विद्यार्थी। विद्यार्थी सीख रहा है, वो कह रहा है 5 का 25, मैं कह रहा हूं 5 का 25। वो कह रहा है 5 का 25, मैं कह रहा हूं 5 का 25। अब वो उसके पास कस्टमर आ रहे हैं, मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहा। साला की करी आवाजটা ওঠা, আমি आवाजটা उठिए बोलता 5 का 25। जैसे ही बोला उठा के फर्स्ट कस्टमर आया। कस्टमर ने मेरे हाथ ऐसे करके हाथ मारा, इधर मैं पीछे मुड़ा, फटाक से एक हाथ मेरे गाल पे पड़ा। भाई साहब कसम से कह रहा हूं, जैसा ही हाथ मेरे गाल पे पड़ा ना, सबसे पहले मां का मुंह पे लगाया हुआ नाइसिल पाउडर धुआं उड़ा। उसके बाद जो मैंने काला चश्मा पहना हुआ था वो ऐसे उड़ा। उसके बाद मैं कियानो रीव्स की तरह धुप नीचे गिरा। जैसे ही मैं जमीन पे गिरा ना, एनीबडी हर्ड ऑफ शशि थरूर से ये, मैं शशि थरूर की तरह इंग्लिश में टूट पड़ा। Excuse me, there's some problem. Don't you understand? Don't you understand? I got this extra tickets for my friends. What do you understand? Even if you hit me, don't you understand? दिल्ली पुलिस से ठुल्ला टामा के देख लो। बोले ओए घणी इंग्लिश बोल रहे हैं और हमार कॉलरटा धोरे ना हमको उठिए दिलो। मैं एकदम समझ गया कि दिल्ली पुलिस को इंग्लिश पसंद नहीं। मैंने कहा जाने दे बेटा, इंग्लिश भाषा को जाने दे। मैंने कहा भाई साहब मैं विनती करता हूं, मेरे से बड़ी गलती हो गई। कहता मैं तेरा विनती तो पुलिस स्टेशन में निकालता हूं। तो बोला क्या? अच्छा एतो खूने बापी जो मेरा दोस्त है, जैसे ही मैंने बेचना शुरू किया था ना, वो क्राउड में जाके छुप गया। वो कहना चाह रहा मैं इसके साथ नहीं हूं। मैं ऐसे पीछे मुड़ा, बापी और भी पीछे होता है। बापी ऐसा कहता है ऐसे, मेरी तरफ मत देख। और भाई साहब पुलिस वाले ने मेरे को ऐसे कॉलर से पकड़ा हुआ है, कहता है रोक। मुझे लगा जीप आएगी, क्या जीप नहीं, ऑटो रिक्शा रुका। उसने मुझे, वो खुद ऑटो रिक्शा में बैठा, मुझे बिठाया। जैसे ही मैं बैठा कहता नीचे बैठ। मैं कहा है, आपको पता है सीट होती है ना ऑटो रिक्शा में, और ड्राइवर के बीच का फट्टा होता है, दोनों के बीच में ऐसे बिठा दिया मेरे को। देखो मैं अब आपके जैसा इतना मोटा नहीं हूं, लेकिन फिर भी अरे इज्जत बोल के कोई चीज होती है, इज्जत का फलूदा हो गया भाई साहब। ऐसे उधर बिठा कर रखा, फिर कहता पुलिस थाने करके मोटर, वो 3 व्हीलर जा रहा है। मैं अंदर बैठा हूं, वहां से ना पास में रामलीला ग्राउंड गुजर रहा है। मुझे लग रहा है सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। मुझे बचपन से पता था कि मैं फेमस होने वाला हूं। मैं कहा साले वो लोग मुझे पहचान जाएंगे। फिर मैंने ये भी सोचा वो लोग कहेंगे ये देखो गोविंद विद्यार्थी का लड़का जा रहा है, गोविंद विद्यार्थी जो फ्रीडम फाइटर थे। फिर मैंने एक बात सोची, फ्रीडम फाइटर भी तो जेल जाते थे भाई साहब। ये सब मैं सोच रहा था। ऐसे कॉलर पकड़ा हुआ, मैंने पीछे मुड़ के देखा, वहां पे बापी दौड़ता हुआ आ रहा है ऐसा करता करता। उसके बाद हम लोग पहुंचे दरियागंज पुलिस थाने। भाई साहब स्कैरी थॉट, ऊपर लिखा हुआ है दरियागंज पुलिस थाना। ऐसे कॉलर पकड़ के वो अंदर ले गया। एक पुलिस इंस्पेक्टर बैठा होता, उसके पार धक्का दिया, एक फट्टे में बिठा दिया। बिठाते बिठाते वो इंस्पेक्टर को कहता है टिकट बेच रहा था। फट्टे पे बैठते ही मैंने बाईं तरफ देखा, दाईं तरफ टेढ़े मेढ़े लोग बैठे हुए थे। इधर कुछ लेडीज बैठी थी ऐसे क्या कर रहे हैं, उधर कोई लौंडे बैठे तगड़े थे। साढ़े कौन सी पिक्चर थी? मैंने कहा अंकल अमिताभ बच्चन की। दूसरी लेडीज कहती है अरे हमारा अमिताभ तो तू है। मैं सोच रहा हूं ये चिकन के चक्कर में कहां फंस गया मैं। इतनी देर में बापी आया, धाप धाप धाप। बापी ने भी पिक्चर देखी थी। बापी आया, इंस्पेक्टर के सामने अमिताभ बच्चन की तरह खड़ा हुआ, टेबल पे हाथ रखा और कहता है इंस्पेक्टर साहब मेरा दोस्त निर्दोष है। इंस्पेक्टर ने हल्के से मुंह उठाया,
उसकी तरफ देखा, कहता कोई बात नहीं, तू मंडे को इसे 30,000 कोरट से ले जाना। 30,000 कोरट मंडे? आज तो फ्राइडे था। मैं सोच रहा था ये चिकन के चक्कर में कौन सा 3 days 4 night का मैंने पैकेज ले लिया। और भाई साहब तब तो मैं व्लॉगिंग भी नहीं करता था कि मैं जेल में जाके कहूं ये देखिए जेल का दाल कैसा होता है, जेल की रोटी कैसी होती है, अरे ये तो मटन नहीं ये आलू के टुकड़े हैं। मैंने कहा आशीष विद्यार्थी क्या होगा तेरा? अब बापी ने एक और ट्राई किया। बापी कहता है इंस्पेक्टर साहब मैं आपको बता रहा हूं। इंस्पेक्टर ने ऊपर मुड़ के कहा तू भी रुकेगा? बापी क्लियर था वो रुकने वाला नहीं था। फट से दरवाजे पास पहुंच गया। दरवाजे पे पहुंच के उसने एक ऐसी घटिया हरकत की कि पूछो मत यार। पूरे फिल्मी स्टाइल में ऐसा मुड़ा, कहता है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर ने फिर उसकी तरफ देखा, कहता है इंस्पेक्टर साहब मेरे दोस्त को ज्यादा टॉर्चर मत करना। अबे टॉर्चर की बात करने की क्या जरूरत थी? इंस्पेक्टर का एक्सप्रेशन बदल गया, ऐसे मुड़ के मेरी तरफ देखता है। ये आइडिया उसे नहीं आया था। उसके बाद बापी जाते जाते मेरे को ये कह गया, मुझे आज भी पता नहीं चला कि मुझे ठेंगा दिखा रहा था या थम्स अप दिखा रहा था। भाई साहब बापी गायब। अब मैं आपको एक बताता हूं, आप में से किसी ने क्रिस नोलन का नाम सुना है? सुना है ना बेटा? किसी को बताना मत। भाई साहब क्रिस नोलन ऐसी पिक्चरें बनाते हैं कि अगर आप देख लो तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने किसी को बता दिया कि आपको समझ नहीं आई तो लोग आपके ऊपर थूकेंगे। इसे सब कहते हैं हाँ नोलन का देखे जी दारुण लगे छे, क्यों बुझते पारे ना। क्रिस नोलन की पिक्चर की खासियत होती है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एक हो जाता है। मेरे लिए वैसा हुआ। मैं सडनली खड़ा हुआ, मैंने कहा आशीष विद्यार्थी अपनी जान बचा ले। मैं इंस्पेक्टर के सामने पहुंचा, मैंने शर्ट का एक बटन खोला। अब बताऊं, मैंने एक ऐसा डायलॉग बोला जो मैं बरसों बाद फिल्मों में बोलने वाला था। मैं इंस्पेक्टर के सामने खड़ा हुआ और बोला इंस्पेक्टर साहब मेरा नाम है राज पाटिल राजा, और राजा को प्रजा कभी धोखा नहीं देती। थैंक यू। आपको ये डायलॉग अच्छा लगा? इंस्पेक्टर को अच्छा नहीं लगा। भाई साहब बच्चू बिच्छू गया तेल लेने भाई, वो तो कोबरा बनकर डस लिया मेरे को। जैसे ही मुझे बोला, जैसे ही उसने मैंने बोला कि इंस्पेक्टर राजा को प्रजा धोखा नहीं दे सकती, कहता है पर धो तो सकती है। भाई साहब वो धोने को तैयार। मुझे मेरी मां की चिंता आ गई। फटाक से मैं उसके पांव पड़ गया, फटाक से पांव पड़ गया। इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वो जो मेरे साथ था वो मेरा लीडर है, उसको पकड़ो। साला वो तो भाग चुका था। भाई साहब इंस्पेक्टर हिरन ऐसे देखे जा रहा है। फिर सडनली मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब आपको समझ में नहीं आ रहा, आप तो मेरे को अभी रख लोगे, मंडे को जब आप मुझे छोड़ोगे मेरे को लेने मेरी माँ आएगी और मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। जैसे ही मैंने ये बात कही इंस्पेक्टर की आवाज में फर्क आया। इंस्पेक्टर ने मुझे कहा खड़े हो जा। मैं खड़ा हो गया। मैंने इंस्पेक्टर की आंखों में देखा, उसकी आंखों में ना हल्की सी नमी थी, एक तो जौल छिलो चौके। मैं उसको देख के समझ गया कि आज सुबह भी वो अपनी मां और बीवी से पिट के आया है। देखो मां के केस में हम दोनों जुड़ चुके थे, हम एक हो चुके थे। फिर इंस्पेक्टर बोला दोबारा करेगा? मैं समझ गया था कि इंस्पेक्टर फर्स्ट टाइम क्रिमिनल को लाइफ टाइम क्रिमिनल नहीं बनाना चाहता था। मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब कभी नहीं। फिर उसने ऐसे करके हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया मैंने हाथ पकड़ लिया और जोर से दबाया और चूम दिया। जैसे ही ये क्या कहता है साले मैं उस तरह का लौंडा नहीं हूं। उस समय मैं बात नहीं समझा था, अब कुछ कुछ समझता हूं। फिर मेरे अपने मुंह को मेरे कान के पास लेकर आया और बोला जेब में कितने हैं? तब मैं समझा इंस्पेक्टर ने हाथ बढ़ाया नहीं था, फैलाया था। समझ रहे हैं? हाथ पेते छिलो गुड़ू, हाथ बाड़िया भाड़ा ही नहीं, हाथ पेते छिलो।
अब मैं लाइफ में पहली बार घूस देने वाला था। बहुत बड़ा दिन था भाई साहब। मैं पिक्चरों में देख चुका था, आपको पता है ना कि मेरे जेब में 5 रुपए बचे थे, मैंने जेब में हाथ डाले, 5 रुपए उठाए, जैसे फिल्मों में देखा है। रख ले रख ले रख ले, ऐशकर ऐशकर। पिक्चरों में ऐसे ही देता ना घूस। इंस्पेक्टर ने हाथ छुड़ाया, हाथ खोला, हाथ में था 5 का नोट। उसने एक बार 5 का नोट देखा, फिर मेरे चेहरे को देखा, मेरे चेहरे को देखा, फिर 5 के नोट को देखा, फिर फाट से उसका हाथ और वो 5 का नोट मेरे गाल से चिपक गया। भाई साहब वो अच्छा हुआ कि वो नोट नहीं गिरा, क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन का फैन हूं। गिरे हुए पैसे मैं आज भी नहीं उठाता था। बहुत जरूरी है भाई साहब। क्या जियो पर क्या तारे निकल रहे थे बॉस मेरे आंखों के सामने। जो इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मारा ना भाई साहब, आंख के आगे तारे घूम रहे थे। और फिर मुझे एक आइडिया आया। मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब मेरे पास कुछ और भी है। वो कहता है साले ये मत बोलियो तेरे पास मां है। मैं कहा नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास खुद्दार के नाइट शो के 2 टिकट और हैं। याद है ना, मैंने रात के भी 2 शो के टिकट और खरीदे थे। कसम से कह रहा हूं, सालों बाद मैंने श्री अमिताभ बच्चन के साथ बहुत सारी फिल्में की। उनके साथ फिल्में करी, उनके साथ पिटा, उन्होंने मुझे मारा भी। लेकिन उस दिन अमित जी मुझसे मिलने से कई साल पहले उन्होंने मेरी जान बचा ली थी। दैट वाज अ बिग डे। और जाते जाते एक और बात बताऊं, आपको पता है समथिंग कॉल्ड एफर्मेशन। आप कोई चीज बार बार जब बोलते हो वो सच हो जाता है। तो मैं माँ बाबा को मैं जो झूठ बोला था ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बाय द टाइम आई रीच 12th सचमुच न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गया था। उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बेस्ट ऑफ 4 था जब आप 12th में पहुंचते हो। इसीलिए 12th में 4 आउट ऑफ 100 आने के बावजूद मैं पास हो गया। नहीं तो 12th क्लास फेल फिल्म मुझ पर बनी होती। हाँ डायलॉग। अरे এবার একটা মজার স্টোরি তোমাকে শোনাচ্ছি, তা ওটাও বলে দেবো, লাস্টে বলবো। বলছি ওটাও লাস্টে বলবো। বাংলাতে বলবো? আচ্ছা ঠিক আছে। এবার আপনাদের একটা মজার কথা বলছি। আমি না যখন করতে কি মত আমার ফিল্মটা পেলাম না, আমি থাকলাম, আর তারপরে আমি একটা নতুন ফিল্ম পেলাম। ওই ফিল্মের নাম ছিল দ্রোহকাল। আপনারা কেউ দ্রোহকাল দেখেছেন? দ্রোহকাল দেখেছে কেউ? দেখেনি? আপনাকে বলছি, দ্রোহকাল ফিল্মটা আমার ফার্স্ট ফিল্ম ছিল যেটা রিলিজ হলো, আর ওই ফিল্মের জন্য আমি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেলাম। আমার ফার্স্ট ফিল্ম। খুব বড় খবর ছিল আমার জন্য বন্ধু। আর আপনাকে এই স্টোরিটা খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে। এইটা জেনে নিন, আমি যখন দ্রোহকাল আমি একটা ফিল্ম শ্যুট করছিলাম, আমাকে লোকেরা বললো কি আর গোবিন্দ জি কা ফোন है, গোবিন্দ হেলানি আমার ডাইরেক্টর প্রডিউসার। তো আমি গেলাম ওখানে, লাইনে সবাই ছিল, তখন তো পাবলিক বুথ হতো, লাইনে ছিল, আমি ওখানে গেলাম, ফোন উঠালাম, আমি বললাম হ্যালো গোবিন্দ জি। ওখানে বলে আশিস, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ গোবিন্দ জি, আশিস তুমি রেস্টুরেন্ট, মানে কি क्या गोविंद जी? आशीष तुम नेशनल अवार्ड जीत गए हो ना। बॉस कैन यू बिलीव इट, ফার্স্ট ফিল্ম ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। আমি মুড়ে না, আমি পুরো ওয়ার্ল্ডকে বলতে চাই আমি জিতে গেছি, হয় না এমন? বুঝতে পারছো? আমি যেই শুনেছি, আমি যেই এমনি মুড়েছি, আমার পেছনে যে ছিল বলেছে জলদি করবে। সালা হিরোইজমের জায়গা নেই ওয়ার্ল্ডে। হ্যাঁ জলদি করবে। তো আমি গোবিন্দকে বললাম বলছো গোবিন্দ জি। এবার গোবিন্দ জি আমাকে ফার্স্ট প্রজেক্ট দিয়েছেন, বলছেন যাও মেনল্যান্ড চায়না বুক করো, এভরিবডি উইল কাম ফর দ্য পার্টি দিস ইভিনিং। নাও আমি খাবার খেতে শুরু থেকে খুব ভালোবাসি, কিন্তু বল খাবার জন্য পকেটে পয়সা আমার দরকার। মেনল্যান্ড চায়না আজ অব্দি আমি কখনো ভেতর থেকে দেখিনি। তখন গোবিন্দ জি আমাকে বলছে পার্টি করো, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির লোকেরা হবে। ওই জায়গাতে আমি নিজে কখনো খেতে যাইনি। গোবিন্দ জি বলছে ওখানে পার্টি করো।
আমি মোটরসাইকেল চালিয়ে ওখানে পৌঁছেছি, ভেতরে ঢুকেছি, এসির হাওয়া লেগেছে। আমি বলতাম গুরু কোথা থেকে দেবে এত পয়সা? আমি তারপর ভেবে ভেবে ঘাবড়ে আছি। 7:30টার সময় গোবিন্দজি ঢুকেছে। হ্যাঁ, গোবিন্দজি ঢুকেছে। তখন দুটো ওয়েটার আবার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের চোখের ওপর লেখা আছে গরিব। আমি ওকে বলছি আমার এখানে পার্টি আছে। বলছে আচ্ছা, ক্যাশ দোগে আর ক্রেডিট কার্ড? আমার কাছে তো দুটোই নেই। আমি বলছি সব কর দেঙ্গে, রেডি কর দো। এবার 7:30টার সময় গোবিন্দজি ঢুকেছেন। গোবিন্দজি ঢুকে বলছে আশিস কংগ্রাচুলেশন। আমি বলছি থ্যাংক ইউ গোবিন্দজি। বলছেন বুক করে দিয়েছো কি? আমরা হ্যাঁ গোবিন্দজি বুক করেছি। কেন কোথায়? আমি বলছি গোবিন্দজি ওই টেবিলটা। বলছি একটা টেবিল? হ্যাঁ গোবিন্দজি। আপনি, আমি আর আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, मैंने अपने दोस्त को बुलाया था बिल देने के लिए। सर समझो, ये फिल्म इंडस्ट्री आपको दूर से बड़ा अमीर दिखता है, लेकिन उस अमीर इंडस्ट्री का मैं गरीब पात्र था। पैसा छिलो ना, लोगेरा पार्टी को त्याग छिलो। गोविंद जी बोले आशीष मैंने तुमको बोला था पूरा बुक करो, एवरीवनस गोइंग टू बी देयर। साला मिनटे পুরোটা বুক করে দিয়েছে। এবার আমি একটাই কথা ভাবছি, আমি বম্বে এসছি অ্যাক্টর হতে, মা বাবাকে এটা বলে এসছি, এবার কি মুখে ওদের বলবো কি না আজকাল আমি মেনল্যান্ড চাইনাতে বাসন ধুই? তাহলে এত লোকেরা খাবে তো, আমি তো 5-6 বছর ওখানে বাসন ধুতে হবে। হ্যাঁ কি করি কি করি। কিন্তু তোমাদের একটা কথা বলি ভাই, ভগবান আছে। বম্বেতে যখন বৃষ্টি হয় না, তখন বৃষ্টি হয়, যখন বৃষ্টি হয় তখন বন্যা হয়, যখন বন্যা হয় বাড়ি থেকে কেউ বেরোতে পারেনি। ওই দিন একদম বৃষ্টি হয়নি ভাই, শুকনো ছিল। জুলাই মাস এক ফোঁটা বৃষ্টি না, সবাই পৌঁছলো সালা। একজন এমন না যে বলে না আমার মঙ্গলবার, আমি না আজকে ভেজিটেরিয়ান। সবাই সালা প্রন খাচ্ছে, সবাই মদ টানছে, কেউ ও সস্তা ওল্ড মং খাচ্ছে না, সবাই হুইস্কি হুইস্কি হুইস্কি। হ্যাঁ, আমি হাতে একটা ভডকা মতন গ্লাস নিয়ে বসে আছি। জানো কি ছিল গ্লাসে? গরম জল, একটুখানি লেবু চিপে নিয়েছিলাম ওটাতে, मतलब स्टाइल के लिए, जिसको लगे वोडका। आई वाज स्टैंडिंग लाइक दिस। তারপরে অমরিশ জি এলেন, টল অমরিশ জি, টুপি পরে এসে বলছেন অমরিশ জি, আশিস হাউ আর ইউ আশিস? आई से अमरीश जी गुड। আশিস আজ मैं खुश हुआ। মুগাম্বর মতন লাগলো আমার। হ্যাঁ আচ্ছা গোবিজি। तब আমাকে বলছেন आशीष तुम अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हो? मैंने कहा अमरीश जी मैं अपने रिच पेरेंट्स को मिस कर रहा हूं। যদি পয়সাওয়ালা জমিদার মা বাবা হতো তো খুব ভালো হতো। নড়ে আছে আমি অমরিশজির মুখটা দেখছি 5,000 টাকার বিল তো এখানেই হয়ে যাবে। এত বিশাল মুখ, কিছুই খেয়ে নিলে হয়ে যাবে। তারপরে লোকেরা নাচছে, বুঝতে পারছে, নাচছে আমার কাছে এসে আমার পেটে না গুজি মারছে। আশিস আমি জানি কি ফিল করছো। আমরা কিচ্ছু জানো না তুমি আমি কি ফিল করছি। পয়সা নেই আমার কাছে, আমার ছাতিতে মুখ ধরছে তোমরা, কিছু বলতে পারছি না গুরু। সবাই নাচছে, সবাই মজা করছে। 9:30টার সময় বললাম ভাই কিছু কথা করিনি, লেট মি টেক মাই লাইফ ইনটু মাই হ্যান্ডস। আই ওয়াকড আপ টু গোবিন্দজি। আমি গোবিন্দজির কাছে পৌঁছে গেছি। গোবিন্দজি কারোর সাথে কথা বলছে, হ্যাঁ কথা বলছে। আমি বলছি গোবিন্দজি আপনাকে কিছু বলতে চাই। গোবিন্দজি সাডেনলি বলে ও শোনো, আরে শোনো 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 আশিস সবাইকে কিছু বলতে চায়। আমরা না গোবিন্দজি কি বলছে গোবিন্দজি কিছু আপনাকে বলতে চাই। সাডেনলি ওর লাগলো কিছু, হ্যাঁ আমি থ্যাংক ইউ কিছু। গোবিন্দজি হ্যাঁ বলো বলো। আমি সাইডে নিয়ে এসেছি, বলি কে ভালো কি। এবার আমি ভাবছি কত দিনের মোহলত মাংবো, মানে 6 মাস 2 বছর 5 বছর পরে পয়সা দেবো। আমি গোবিন্দজিকে বললাম গোবিন্দজি আপনি প্লিজ মাইন্ড করবেন না, আজ রাত যদি আপনি পয়সাটা দিয়ে দিন তাহলে না আমি প্লিজ গোবিন্দজি প্লিজ আজকে যদি আপনি বিলটা যেই বলেছি, গোবিন্দজির মুখের এক্সপ্রেশনটা চেঞ্জ হলো। গোবিন্দজি আমার মুখের দিকে দেখলো আর বলল হোয়াট আশিস ইটস মাই পার্টি।
আশিস মেরি পার্টি এটা আমার পার্টি আশিস। আমি শালা ভাবলাম বোধহয় ভুল শুনেছি। আমি বললাম হ্যাঁ গোবিন্দজি, হ্যাঁ। গোবিন্দজি বলছে আশিস এটা তো আমার পার্টি, কি খাচ্ছ তুমি? আমাকে হাত দেখিয়ে বলছে কি খাচ্ছ? আমি বলছি গোবিন্দজি এবার খাবো। তারপরে ওই ওয়েটারটাকে আমি ডেকেছি, এখানে আয়, যার চোখের ওপর লেখা ছিল গরিব। আমরা এখানে এসো, তুমি উইস্কি আনো উইদাউট আইস আর প্রন আনো উইদাউট রাইস। আজ তো আমি নাচিব। আর বন্ধু ওই দিন আমি নাচলাম, আমি গাইলাম, কিন্তু ওই দিন এক কথা আমি শিখলাম, জানো কি কথা? যতই অ্যাওয়ার্ड्स पाओ, जितना भी आपको इज्जत मिले, जितनी भी शोहरत मिले, जरूरी है कि जेब में हो। तो इसलिए टुडे आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू आफ्टर हैविंग डन more than 350 films across 11 languages दोनों। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের খড়গপুর কি আপনারা এসেছেন মাই স্ট্যান্ড আপ কমেডি। যেতে যেতে আপনাকে একটা শট দেখিয়ে যাচ্ছি ফর মাই ফিল্ম বিচ্ছু। ওকে, বিচ্ছুর একটা ডায়লগ আপনাকে বলে যাচ্ছি, না একটাই ডায়লগ। বিচ্ছু রেডি? এখান লোকেরা ওখানে আছে খুঁজছে, ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করছে वो कहां है सर, वो कोई नहीं है। তারপর আমি বলি ढूंढ उसे, कहां था? एक खिड़की थी सामने, एक खिड़की थी बाईं तरफ, एक दाईं तरफ, और बीच में वो। मुझे उसको पकड़ना है और गन को ऐसे करके उड़ाना है। एंड दैट्स माय टाइम। थैंक यू सो मच खड़गपुर। अनेक अनेक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।